सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी संभालते हैं। भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में 5वीं शताब्दी की ये प्रतिमा है वेलवेट पृष्ठभूमि में, जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को एक अनोखी गरिमा प्रदान करती है। டெல்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தற்போது அமைச்சரவை விரிவாக்கம், அதோடு புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. 43 ஒன்றிய அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்கிறார்கள். அதில் 36 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்கிறார்கள். அதே போல இணையமைச்சர்களாக இருந்த 7 பேர் கேபினெட் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கிறார்கள். அதற்கான விழாவானது குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தற்போது தொடங்கியிருக்கிறது. பதவியேற்கக்கூடிய அமைச்சர்கள், அதே போல மத்திய அரசின் முக்கிய நிர்வாகிகள், பிரதமர் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் அரங்குக்கு வந்து மத்திய அமைச்சர்களுக்கு தொடர்ந்து பதவியேற்பு செய்து வைப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு புதிய அமைச்சர்களுக்கான வாய்ப்பும் இந்த அமைச்சரவையில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான விழாவானது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதை நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்று 12 ஒன்றிய அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்திருக்கக்கூடிய சூழலில் 43 ஒன்றிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவானது டெல்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க இருக்கிறார். 36 பேர் புதிய அமைச்சர்களாக பதவியேற்க இருக்கிறார்கள். இதுவரை இணையமைச்சர்களாக இருந்த 7 பேருக்கு கேபினெட் அந்தஸ்தானது வழங்கப்படுகிறது. கேபினெட் அமைச்சர்களாக அந்த 7 பேர் புதிதாக பதவியேற்க இருக்கிறார்கள். பல்வேறு துறைகளில் ஏற்கனவே பணியாற்றி வந்த அமைச்சர்கள் தற்போது 12 பேர், அதில் ஒன்றிய அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் தற்போது ராஜினாமா செய்திருக்கக்கூடிய சூழலில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தற்போது அமைச்சர்கள் பதவியேற்பதற்காக தயாராக இருக்கிறார்கள். ஒன்றிய அரசின் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும் அதற்கான அந்த அனுமதியானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. कहा जा सकता है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दरबार हॉल में उपस्थित। एक बहुत ही खास अवसर और एक नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर है। देश को குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம், அதைத் தொடர்ந்து 43 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்க இருக்கிறார்கள். இதுகுறித்து தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு திரு ஷியாம் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கார். வணக்கம் திரு ஷியாம். தற்போது முதற்கட்டமாக இந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க? தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாரதிய ஜனதா தலைவர் முருகன் அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைத்திருப்பதிலே மகிழ்ச்சி தான். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் மத்திய அமைச்சராகிறார் என்கிற வகையிலே அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள். மட்டுமல்லாமல் அவர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை கொஞ்சம் வைப்ரண்டாக மாற்றினார், அது இல்லை என்று மறுக்க முடியாது. அவரது பதவி காலத்திலே எனக்கு தெரிந்து கொடிக்கம்பங்களே இல்லாத கிராமங்களில் கூட பாரதிய ஜனதா கொடிக்கம்பங்கள் நிறைய இருந்தன. மத்திய அமைச்சராக அவர் எப்படி பணியாற்றப் போகிறார் என்பதை இனிமேல் பொறுத்து இருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திரு ரவீந்திரநாத் அவர்களுக்கு பதவி தரப்படாததே எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. இத்தனைக்கும் ஓபிஎஸ் அவர்கள் மிகவும் வலிந்து சம்பவம் நடந்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு ஒன்றிய அரசுக்கெல்லாம் வக்காலத்து வாங்கி பெரிய பெரிய அறிக்கைகளை எல்லாம் வெளியிட்டார். ஆனால் ஒன்றிய அரசு அவரை ஏன் ஏமாற்றி விட்டது என்பது எனக்கு புரியவில்லை. ஒன்று. இரண்டாவது, அதிமுக பாரதிய ஜனதா ஒரு விரிசல் இதில் தென்படுவதாகத்தான் நான் உணர்கிறேன். ஏனென்றால் தம்பிதுரை அவர்கள் கூட அமைச்சர் பதவிக்காக முயற்சி எடுத்தார். அதிமுகவிலிருந்து யாருக்குமே தரவில்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் பாரதிய ஜனதாவின் கூட்டணி கட்சிகளில் அதிமுகவுக்கு மட்டும்தான் ஒன்றிய அமைச்சரவையிலே பிரதிநிதித்துவமே இல்லை என்கிற ரீதியிலே இந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கம் அமைந்திருக்கிறது. அதிமுக பாரதிய ஜனதா கூட்டணி பற்றி இன்று சி.வி. சண்முகம் சொன்னது ரவீந்திரநாத்துக்கு மந்திரி பதவி இல்லை என்றான பிறகுதான் அவர் அப்படி கூறியிருப்பார் என்பது எனது யூகம். நேற்று அவர் சொன்னாலும் கூட ஏற்கனவே ஒரு 1.5 மாதமாகவே ரவீந்திரநாத் அவர்களுக்கு பதவி இல்லை என்கிற பேச்சு அடிபட்டு கொண்டுதான் இருந்தது. காரணம் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற ஒரு விரிசல். அதுபோக திரு முருகன் அவர்கள் சார்ந்துள்ள சமூகம் அதிமுகவின் பழமையான ஓட்டு வங்கிகளில் ஒன்று. எம்ஜிஆர் அவர்கள் மதுரை வீரன் படத்திலே நடித்த காலத்தில் இருந்து அருந்ததியர்கள் அதிமுகவின் பலமான ஓட்டு வங்கி. அதையெல்லாம் கணக்கு பார்த்துத்தான் அந்த பதவி தரப்பட்டிருக்கிறது. அரசியல் கணக்கு இல்லாமல் எப்போதுமே அமைச்சரவை விஸ்தரிப்பு கிடையாது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான்.
எது எப்படி இருந்தாலும் இது பற்றிய அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் இனி போக போக தெரியும் என்று நான் நம்புகிறேன். திரு முருகன் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்து. திரு ஷியாம், முருகனுக்கு இந்த அமைச்சர் பதவி கொடுத்ததை வரவேற்றிருக்கிறீங்க. அதே போல ரவீந்திரநாத்துக்கு கொடுக்கவில்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஏற்கனவே மத்திய அமைச்சர்களாக இருந்த திரு ஜி.கே. வாசனுக்கோ திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்கோ கொடுக்கப்படாததுக்கான காரணம் என்னவா பாக்குறீங்க? ஏற்கனவே எம்பியா கூட இருக்காங்க மாநிலங்களவையில. அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்கான பிரச்சனை என்னவாக இருக்கும் என்றால், அவர் மீது இருக்கின்ற அந்த சிபிஐ வழக்கு அது இன்னமும் நிலுவையில் தான் இருக்கிறது. எனவே அது கொஞ்சம் தயங்குவார்கள், அதை கொடுப்பதற்கு தயங்குவார்கள். அதிமுக சார்பாக ஒருவருக்கு கூட பதவி இல்லை என்பதுதான் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இத்தனைக்கும் 2 எம்பிக்கள் பதவியை அதிமுக இப்போது இழக்கப் போகிறது. நாளை அல்லது 2 நாட்கள் கழித்து தேர்தல் கமிஷன் காலியாக இருக்கின்ற இந்த 3 எம்பி பதவிகளுக்கும் தனித்தனியாக நோட்டிபிகேஷன் விடும் என்றுதான் கூறப்படுகிறது. அப்படி அறிவிப்பாணை வந்தால் அந்த 3 பதவிகளையுமே திமுக தான் கைப்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு தமிழ் சட்டப்பேரவை பலத்தை வைத்து நம்மால் கூற முடியும். இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே அதிமுக தனது எம்பிக்களையும் இழந்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அவர்கள் அமைச்சர்களாகவும் ஆகவில்லை. எல்லாம் போக தம்பிதுரைக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்திருந்திருக்கலாம். அவர் அதற்கு சீனியராக இருக்கின்றார். ஒருவேளை ரவீந்திரநாத் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்பி என்று பார்த்தார். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்பிக்கும் கொடுத்திருக்கிறார்கள், இந்த விஸ்தரிப்பிலே கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதிமுக பாரதிய ஜனதாவுக்கு இடையே கொஞ்சம் மன வேறுபாடுகள் தென்படுவதாகத்தான் நான் உணர்கிறேன். அது போக பாரதிய ஜனதாவின் புதிய தலைவராக யார் வரப்போகிறார் என்கிறது யூக செய்திகளை பார்த்தால் அண்ணாமலை அவர்களின் பெயர் பெரிதாக அடிபடுகிறது. அண்ணாமலை அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா தலைவர் பதவி தரப்பட்டால் அது மீண்டும் கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கிற அதிமுக ஓட்டு வங்கியை தான் அது பாதிக்கும். ஆக ஒட்டுமொத்தத்திலே அடுத்தடுத்த ஒரு 2 அல்லது 3 தினங்களில் இது தேசிய அரசியல் போகிற போக்கையும் மாநில அரசியல் எப்படி திசை திரும்புகிறது என்பதையும் நாம் யூகித்துக் கொள்ளலாம் என்பது எனது எண்ணம். இணைப்பில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்காக நன்றி திரு ஷியாம். அடுத்ததாக மூத்த பத்திரிகையாளர் துக்ளக் திரு ரமேஷ் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார். வணக்கம் திரு ரமேஷ். தற்போது இந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கம், அதுல தமிழ்நாட்டுக்கான ரெப்ரசன்டேஷனா திரு முருகன் அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட இருக்கிறது. உங்களுடைய பார்வை? திரு முருகன் அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி அளிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக அவர் நியமனம் செய்யப்பட்ட போதே பரவலாக ஒரு அறிமுகம் இல்லாத ஒருவராகத்தான் அவர் கருதப்பட்டார். இந்த நிலையில் ஒருவேளை தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஒரு வலிமைப்படுத்த வேண்டும், ஒரு புதிய ஒரு லைன், பொலிட்டிக்கல் லைன் பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கு எடுக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் உள்ளடக்கி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கலாமோ என்று கருத வேண்டியிருக்கிறது. மொத்தமாக உத்தரப்பிரதேசத்தின் மீது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கவனம் இன்றைக்கு கூடுதலாக திரும்பி இருப்பது அரசியலிலே பொதுவாக ஒரு பார்வையாக இருக்கிறது. அதை இந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கமும் பிரதிபலித்திருந்தாலும் கூட தமிழகத்தின் பக்கமும் இனி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கவனம் திரும்பும். தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை அமைப்பு ரீதியாக வலுப்படுத்துவது, தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான விமர்சனங்கள், அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களை கருத்து ரீதியாக அதை வலுவாக எதிர்கொள்வது ஆகிய நோக்கங்களுடன் இந்த நியமனம், திரு முருகன் அவர்களுடைய நியமனம் நடைபெற்றிருக்க வாய்ப்புண்டு என்று நான் கருதுகிறேன்.
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जी किशन रेड्डी।
मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंकज चौधरी बैठने का क्रम अलग हो गया। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुश्री शोभा करंडलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के
लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। With the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anekal Abbaya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.